Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying class 8 maths chapter 8 comparing quantities. In our previous video we completed exercise 8.1 in which we learned to compare two quantities by finding their ratio or by finding their percentage. Today we will be discussing these following points. We will be learning to find the increase or decrease percentage, then we will deal with discounts, and we will learn to find the profit percent or loss percent when the cost price and selling price of an item is given. Also, we will be taking these taxes into consideration which are included in the bill amount of the items that we purchase. To begin with, increase or decrease percent. Now, as time passes by, the value of a quantity tends to change. It may either increase or it may decrease. For example, the price of a commodity, it may either increase or decrease with time. Similarly, if you study well, then your marks may increase from the first test to the second test, and if you don't study well, then your marks may decrease from the first test to the second test. And this increase or decrease is always calculated over the original value of the quantity that is in consideration. Here we take this example. If the price of wheat increases from rupees 20 per kg to rupees 25 per kg, then let us see what is the increase in this case. Just calculate it. Yes, obviously the increase will be rupees 25 minus rupees 20 and this is equal to rupees 5. वीट का कॉस्ट पहले रुपीज़ 20 पर केजी था और बाद में हो गया रुपीज़ 25 पर केजी. तो अब इंक्रीज कितना हो गया इसके प्राइस में? ऑब्वियसली इट इज़ रुपीज़ 5 एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द परसेंट इंक्रीज. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये रुपीज़ 5 जो इंक्रीज हो रहे हैं ये किस में से हो रहे हैं? यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं. एक तो है ये ओरिजिनल वैल्यू जो पहले थी प्राइस वीट की, और ये है सेकेंड वैल्यू जो बाद में नया प्राइस है वीट का. तो यहाँ पर हम जब भी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करेंगे तो हम कंसिडर करेंगे ये ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द आइटम दैट इज इन क्वेश्चन. सो हियर वी विल टेक दिस एज 20. तो ये जो 5 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है ये किस पर इंक्रीज हुआ है? ओरिजिनल वैल्यू रुपीज़ 20 पर. और अब 100 में से काउंट करना है हमें तो इंटू 100 करेंगे एंड दिस विल गिव अस द परसेंटेज. कैंसिल दिस 0. 2 5s are 10 and this is 5 5s are 25. So, the percentage increase in the price of wheat is 25%. और इसका क्या मतलब हुआ कि जब wheat का कॉस्ट था 20 रुपीज़ पर केजी तो वो बढ़ गया और हो गया 25 रुपीज़ पर केजी. कितना अमाउंट बढ़ गया? रुपीज़ 5 पर केजी. और अगर हम इसी प्राइस को 100 मान लें तो अब न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 25% इंक्रीज़ हो जाएगा. 25% इंक्रीज़ होने से नया प्राइस हो जाएगा 125 रुपीज़. तो 100 में से कैलकुलेट करें तो पहले अगर वीट का प्राइस था रुपीज़ 100 तो अब नया प्राइस हो जाएगा रुपीज़ 125. इन दिस वे यू कैन कनेक्ट ऑल दिस कॉन्सेप्ट. ओके. ऑल्सो फ्रॉम हियर वी गेट टू इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज. दीज आर दोज. परसेंट इंक्रीज, इट इज़ calculated as increase upon original value into 100%. और इसी तरह से percent decrease हम निकाल सकते हैं. decrease upon original value into 100%. तो याद रखिएगा percent increase and percent decrease ये दोनों ही original value पर based हैं. इसी को base मानते हुए हम calculate करेंगे इन दोनों की percentage. एक और example लेते हैं. In this case we will take the decrease. Here we have the price of sugar decreases from rupees 40 per kg to rupees 38 per kg. देखिए अब इस बार decrease हो रहा है price. Find the decrease percent. तो पहले हम निकालेंगे decrease in the price. It will be rupees 40 minus rupees 38. And this is how much? This is equal to rupees 2. Now we have to find the percent decrease and now learn those formulas that we have just now discussed. These two formulas. These are very important and it will always help to solve the question. Here we have percent decrease. It is given as decrease upon the original value
into 100%. Decrease is ₹2. ओरिजिनल वैल्यू, पहले वाली वैल्यू कौन सी है? ₹40. ओरिजिनल वैल्यू का मतलब जो प्राइस पहले था और ये चेंज होने के बाद आया है ₹38 प्राइस. पहले क्या वैल्यू थी? ₹40. तो वो हम लेंगे डिनोमिनेटर में एंड देन इनटू 100. कैंसिल दिस 0. डिवाइड बाय 2. 2 1s are 2 2s are again 2 1s are 2 5s are. Here we have 5%. So the percentage decrease is 5%. And if you convert it into figures, this means कि पहले जो रेट था ₹40 पर kg शुगर का, बाद में वो हो गया ₹38. ₹2 यहाँ पर कम हो गए. इसी तरह से अगर हम प्राइस माने ₹100 शुगर का, तो कितना कम हो रहा है? 5%. इसका मतलब लेस 5 and the new price will be ₹95 if we take ₹100 as the base. तो परसेंटेज से हम इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं. Okay, now what if we have been given the percentage increase or decrease and next we have to find the increase only. Suppose we have been given percentage increase or percentage decrease and we have to now find the increase. We take one example. Suppose the salary of a person, it is ₹25,000 per month. Okay, and now it is being increased by 8%. Then what will be his new salary? This is the question. Now what do you see here? The percentage increase, it has already been given. ये पहले से ही दिया हुआ है percentage increase और हमें अब नई सैलरी फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पर पहले जो सैलरी में इंक्रीज हुआ है, ये तो परसेंटेज में है, एक्चुअल इंक्रीज कितना हुआ है वो निकालेंगे. और वो कैसे मिलेगा? इंक्रीज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. रिमेंबर दिस ओरिजिनल वैल्यू. इंक्रीज परसेंटेज है 8%. 8% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. कितनी है ओरिजिनल सैलरी? इट इज 25,000. सो 8% ऑफ 25,000. इफ यू कैलकुलेट इट, 8% मीन्स 8/100. 100 में से 8 ऑफ के लिए हम लगाएंगे इनटू 25,000. Cancel these two zeros and this will be equal to ₹2,000. This means that the increase in salary is ₹2,000 and now the new salary, it will be ₹25,000 plus this 2,000. This will be equal to ₹27,000. समझ में आया आपको? तो यहाँ हम क्या फोकस करना चाह रहे हैं कि अगर हमें परसेंटेज पहले से ही दी हुई है तो ये परसेंटेज किसकी लेंगे हम? ऑलवेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. इसी तरह से अगर डिक्रीज की बात हो देन डिक्रीज इज ऑलवेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. सपोज नाउ इफ द सैलरी इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय से 5%. सैलरी है मान लीजिए 25,000 पर मंथ और अब 5% डिक्रीज हो रहा है मान लीजिए. तो डिक्रीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल सैलरी यहाँ पर है 25,000, तो हम लेंगे 5% ऑफ 25,000. दिस विल बी 5/100. 5% मीन्स 5/100. इस सिंबल का मतलब है अपॉन 100. ऑफ के लिए लगाएंगे इनटू 25,000. Cancel these two zeros and you will get it 25 into 5. It's 125 and 0. इतनी सैलरी कम हो गई है जिस भी पर्सन की यहाँ बात हो रही है. और न्यू सैलरी आप आराम से निकाल सकते हैं माइनस करके. सब्ट्रैक्ट दिस डिक्रीज 1250 from 25,000 and then you will get the new salary. I hope it is clear. All the concepts related to percentage increase and percentage decrease. Next we will talk about discounts. Now you must have heard about the words sale, sale, Mahabachat offer, छूट, छूट, festival offer, festival bonanza, offer ही offer. आपने सुने होंगे ये सब. What does all these words mean? These words mean that the shopkeeper is offering us a rebate on the price of the items that he has in his shop. This means that he will be giving us some rebate in the price. कुछ छूट मिलेगी
और ये छूट किस पर मिलेगी? इट इज़ गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम। मार्क्ड प्राइस मतलब जो आइटम के ऊपर आपने देखा होगा शॉप्स में टैग्स लगे होते हैं और उस पर उनका प्राइस लिखा होता है, उसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम। लेट अस सी, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस और द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस भी कहते हैं उसे। और इसी मार्क्ड प्राइस पर जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। और डिस्काउंट लेने में सबको बहुत मज़ा आता है एंड आई होप इसके क्वेश्चंस करने में भी आपको मज़ा आएगा। परसेंट डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मार्क्ड प्राइस एज द बेस। Now let us see, this is a very important formula. This again is important. Discount is calculated as marked price minus the sale price, and this is the formula for percent discount. Let us suppose that we have gone to a shop and we purchase a dress material on which the marked price is ₹500. ठीक है, ड्रेस मटेरियल लेने जा रहे हैं हम और उसका मार्क्ड प्राइस है ₹500 और हमें सेल कितने में कर रहे हैं शॉपकीपर? Suppose we are getting it in ₹450. ठीक है, then what is the discount offered here? Obviously the discount is marked price. यहाँ पर ये क्योंकि marked है ड्रेस मटेरियल पर, तो ये हो गया marked price और ये है selling price जितने में शॉपकीपर हमें ये ड्रेस मटेरियल दे रहे हैं। तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा? marked price minus the sale price, that is 500 minus 450. दिस इज इक्वल टू ₹50. 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है हमें। अब ये तो है एक्चुअल डिस्काउंट। अगर हम इसे परसेंटेज में देखना चाहें, देन व्हाट विल बी द डिस्काउंट? लेट मी इरेज दिस। यस, परसेंटेज डिस्काउंट, इट इज गिवन बाय डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनटू 100 तो करना ही है परसेंटेज के लिए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा है या इंक्रीज मिल रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस अमाउंट को, ओरिजिनल अमाउंट को हम लेंगे डिनोमिनेटर में। तो ओरिजिनल अमाउंट या मार्क्ड प्राइस यहाँ पर है 500 और डिस्काउंट हमें मिल रहा है 50 रुपीज़, तो 50 अपॉन 500 इंटू 100। हियर कैंसिल दीज 2 zeros एंड दिस इज इक्वल टू 10%। ये हो गया आपका 10% डिस्काउंट। गेटिंग इट? Also, if the discount percentage has been given, then we can obtain the discount by this formula. Discount will be given as discount percent of marked price, and then you can find the sale price as marked price minus the discount. Let us suppose that again we go to a shop and we buy another material with the same marked price ₹500 और इस बार हमें दिया हुआ है discount percentage पहले से ही। इफ़ इट इज़ गिवन से 6%, तो हमारा डिस्काउंट ये तो है परसेंटेज में और एक्चुअल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 6% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, दैट इज 500 रुपीज़ इन दिस केस। ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट परसेंट ऑफ द मार्क्ड प्राइस, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम, एंड दिस विल बी 6 अपॉन 100 इंटू, ऑफ के लिए इंटू 500। कैंसिल द 2 zeros, इट इज ₹30। इसका मतलब एक्चुअल डिस्काउंट जो हमें मिल रहा है वो है ₹30 का। और अब हम सेल प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। जो मटेरियल है उसका प्राइस है ₹500, ओरिजिनल वन विच इज़ द मार्क्ड प्राइस, उसके ऊपर जो टैग है उस पर 500 रुपीज़ लिखा है और हमें डिस्काउंट मिल रहा है 30 रुपीज़ का। तो अब सेलिंग कितने में होगी? 500 minus 30, it will be 470 rupees. I hope all this is very much clear to you. Next, when we go to a shop, suppose we have this case. Your bill in a shop is ₹577.80 and the shopkeeper gives a discount of 15%. How would you estimate the amount to be paid? यहाँ पर आपको शॉपकीपर ने इतने रुपए का बिल बताया और कहा कि आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, इसकी बजाय अगर हम कुछ आइडिया खुद लगाएं कि कितना ऑफ़र मिल रहा है, कितने का छूट मिल रही है, तो उससे हमें शॉपिंग में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और सबके लिए तो हम कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठ सकते। तो ऐसे केस में वी नीड टू गेट एन आइडिया कि कितना हमें
डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो बिल अमाउंट है हमारा, इसको आप ज़ीरोज़ में नियरेस्ट ज़ीरो के लिए राउंड ऑफ कर दीजिए। इट्स 577.80 रुपीज़। इसका नियरेस्ट ज़ीरो हो जाएगा ₹580। ठीक है, अब हमें निकालना है 15% डिस्काउंट एंड इट इज़ ऑलवेज ईजी टू डू कैलकुलेशन विद अ नंबर 10। हम 15% की जगह पहले निकालेंगे 10% का और फिर उसका हाफ कर लेंगे 15, 10 + 5, 5 इज़ हाफ ऑफ 10। तो पहले हम इसका 10% डिस्काउंट निकालते हैं। कैसे मिलेगा, 580 इट्स 0 इंटू 10/100। आप देखेंगे ये हमेशा इजी रहेगा क्योंकि हमने यहाँ भी इसको नियरेस्ट ज़ीरो के अराउंड राउंड ऑफ कर दिया है और यहाँ भी हम ज़ीरो ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे और हमारा डिस्काउंट आ गया 58 रुपीज़। ये तो है ओनली 10%, हम चाहते हैं कि 15% कैलकुलेट करना है। तो अब कितना बच गया, इसी को हाफ कर लेते हैं और हाफ ऑफ 58 करते हैं, इट विल बी 29। देखिए 10% एंड हाफ ऑफ 10 इट इज़ 5, तो 10 + 5% हो रहा है। इसी तरह से 10% निकाला और फिर 5% के लिए इसको हाफ कर दिया। नाउ ऐड दीज टू अमाउंट्स, इट विल बी 87 रुपीज़। सो दिस इज़ द टोटल डिस्काउंट। हमने यहाँ पर खुद ही से आइडिया लगा लिया कि शॉप में खड़े खड़े कि कितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है, अंदाज़ा लगाना है। तो हमने इसे नियरेस्ट ज़ीरो के अराउंड राउंड आउट कर दिया। फिर इसी तरह से यहाँ पर पहले 10% निकाला और 15 चाहिए हमें, तो टोटल परसेंटेज, फिर हमने उसी 10% वाले का हाफ कर लिया, दोनों को ऐड किया, तो इससे हमें एक आइडिया मिल गया डिस्काउंट का। और अब हमारा जो आइटम है वो कितने का पड़ेगा, 500 minus 87. You can subtract and you will get the answer. 10 minus 7 it's 3, 9 minus 8 it's 1 and here we have 4. So it's nearly 413 rupees or you can say it's nearly 415 rupees. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, you can get an estimation. इसी तरह से सपोज ये 15% डिस्काउंट ना होकर के 20% डिस्काउंट होता, मान लीजिए, तो पहले हम निकालते 10%, वो हो गया 58 रुपीज़, और फिर 20% के लिए इसी का डबल कर लेते, दोबारा से इसी को ऐड कर लेते, सो इट्स 116 रुपीज़। ये हो गया हमारा टोटल डिस्काउंट। और अब कितने का आइटम हो जाता, 500 minus 116 and then you could have easily calculated the cost of the item after getting the discount. तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। Getting it? Next we will take the profit and loss. You all are familiar with these terms. First of all, cost price. The price at which an article is purchased. जितने रुपए में हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं वो हमारे लिए हो गया cost price. Selling price. The price at which an article is sold. आपने कोई आइटम खरीदा और फिर उसको बेच दिया, सेल आउट कर दिया, तो वो प्राइस जिसमें आप बेच रहे हैं उस प्राइस को हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। देन प्रॉफिट और गेन। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ प्रॉफिट एंड इट इज गिवन बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस एंड CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यू परचेज अ साइकिल of rupees 1000, okay, and if you now want to resell it suppose in rupees 1200, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस जितने आपने खरीदी थी साइकिल, और ये हो गया सेलिंग प्राइस जितने में आप इसको सेल आउट कर रहे हैं। अब आप देखिए इस केस में सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, यस देयर इज अ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें, सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में हो गया 1200 minus 1000, दिस इज इक्वल टू ₹200, ये हो गया प्रॉफिट। एंड व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ लॉस। सपोज यू परचेज द साइकिल इन ₹1000 and now you are selling it in rupees say 900. So this is your cost price and this is your selling price. और इस बार आप कम रुपए में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो है ये छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऐसे केस में हमारा लॉस होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे,
obviously it will be cost price minus the selling price and this is equal to rupees 100. तो आप ये अच्छी तरह समझते होंगे कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है. जब भी हम कम पैसों में खरीदेंगे और ज़्यादा पैसों में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और जब भी हम खरीदेंगे ज़्यादा पैसों में और बेच रहे हैं कम पैसों में तो हमें लॉस होगा. नाउ वी विल टेक द profit percent or the loss percent. These are always calculated over the cost price. Cost price ओरिजिनल वैल्यू हो गई और उसी के बेसिस पर ये दोनों परसेंटेजेस हम कैलकुलेट करते हैं. सपोज हियर हमने साइकिल ली थी 1000 रुपीज़ में और सेल आउट करी 1200 रुपीज़ में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया था? रुपीज़ 200 का प्रॉफिट हो रहा था. ये तो हुआ एक्चुअल प्रॉफिट, और अब इसी को हम अगर परसेंटेज में बात करें तो ये कैसे मिलेगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस शुड बी वेरी मच लर्न टू यू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट. देखिए ये प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 रुपीज़ का. कितने पर? ओवर द कॉस्ट प्राइस विच इज़ 1000. ये है आपकी ओरिजिनल वैल्यू. तो हर केस में ओरिजिनल वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगी एंड देन इनटू 100. Cancel the two zeros, cancel this single zero and you will have 20% profit. Getting it? 20% profit हो रहा है यहाँ पर. और अगर यही केस हम लें कि 1000 में हमने साइकिल परचेज की और 900 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया, तो हमारा लॉस कितना हो रहा है? ऑब्वियसली इट इज़ रुपीज़ 100. और परसेंटेज लॉस कैसे मिलेगा? लॉस upon again the cost price which is the basic price here, 1000 into 100. Cancel the two zeros and then 10. This is giving us 10% loss. Actually here we are using the unitary method. इसको एक बार और समझ लेते हैं कैसे हो रहा है. देखिए आप, जब हमने 1000 रुपीज़ की साइकिल थी तो हमारा कितना हो रहा है लॉस? इट इज़ 100 रुपीज़. ये लॉस हो रहा है 1000 में से. तो 1 रुपी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख रहे हैं हम और यहाँ लॉस ले रहे हैं. जब 1000 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है तो लॉस कितना हो रहा है? 100 रुपीज़ का. और अगर 1 रुपी हमारा कॉस्ट प्राइस हो तो लॉस कितना होगा? 100 अपॉन 1000 डिवाइड हो जाएगा. लेट मी इरेज दिस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. यस, 1000 रुपीज़ जब हमारा कॉस्ट प्राइस है तो लॉस हो रहा है यहाँ इस केस में 100 रुपीज़ का. नाउ इफ़ वी टेक द कॉस्ट प्राइस एज ₹1 तो लॉस कितना हुआ? 100 अपॉन 1000. 1 के लिए हम डिवाइड करते हैं और जब हमारा कॉस्ट प्राइस है ₹100 तो हमारा लॉस कितना होगा? 100 अपॉन 1000 इंटू 100. दिस इज सेम थिंग. कैंसिल इट ऑफ एंड दिस इज इक्वल टू 10%. तो जब 100 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है तो लॉस हो रहा है 10 रुपीज़ का. यहाँ से पता चल रहा है. तो यही जो हम यूनिटरी मेथड से ऑब्टेन करते हैं उसी को हमने इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है, लॉस अपॉन CP इंटू 100%. तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और आपके बार बार यूज़ भी होंगे. रिमेंबर देम. नेक्स्ट, इफ़ वी हैव बीन गिवन द profit percentage and loss percentage, then what? When profit percentage and CP are given, then how to find the profit? Suppose it has been given that the cycle is of ₹1000 and we have been given the profit percentage as say 4%. ठीक है, अब पहले से ही हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है. तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP और प्रॉफिट परसेंटेज है 4%. इट विल बी 4% ऑफ CP विच इज़ 1000 रुपीज़. और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 अपॉन 100 हो जाएगा ये 4%. ऑफ के लिए लिखेंगे इंटू 1000. कैंसिल दीज टू ज़ीरोज़, इट विल बी 40 रुपीज़. तो एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो है 40 रुपीज़ का.
और ऐसे केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस आपका है 1000 और प्रॉफिट आपका आ रहा है 40 रुपीज़ का, तो सेलिंग प्राइस आपका ये हो जाएगा 1040 रुपीज़। तो जो आइटम पहले आपने परचेज किया 1000 रुपीज़ में, उसे को आप सेल कर रहे हैं 1040 रुपीज़ में विद अ प्रॉफिट और गेन, वी ऑल्सो कॉल इट गेन, with a gain of rupees 40 and in percentage it is 4%. Similar is the case with loss. When loss percent and CP are given, then how do we find this loss? Suppose again we have this same cycle of rupees 1000 and we are selling it at a loss of say 6%. Okay, then what? ये तो हुआ परसेंटेज में, लॉस कैसे निकालेंगे? इट विल बी 6% of the cost price which is 1000 rupees and this will be equal to 6 upon 100 into 1000. Cancel the two zeros, this will be equal to rupees 60. तो 60 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो कितने में साइकिल बिकेगी? देखिए आप यहाँ पर 1000 में हमने उसे परचेज किया था साइकिल को और 60 रुपीज़ लॉस में हम सेल आउट कर रहे हैं। तो लॉस के लिए हम करेंगे माइनस, दिस विल बी 1000 माइनस 60 एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 940। तो 940 में हम साइकिल को सेल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पहले से ही हमें लॉस परसेंटेज दी हुई थी, उससे हमने लॉस की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करी और फिर हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल गया CP माइनस लॉस, और यहाँ से प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस इज CP प्लस प्रॉफिट। ऑल दीज फॉर्मूलेज शुड बी वेरी मच लर्नड टू यू। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा तो याद भी इजीली हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो याद नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको समझिए, बार बार देखिए, समझिए और फिर आप इजीली क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ओवरहेड एक्सपेंसेस। नाउ इन सम केसेस it is not always possible to do the expenditure on the product itself. We need to do some extra expenditures also along with the product that we are buying. Suppose आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, तो सिर्फ रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट ही नहीं लग रहा है आपका, आप उसको ट्रांसपोर्ट करवाएंगे शॉप से लेकर अपने घर तक, और साथ ही साथ आपको कुछ लेबरर्स को भी पेमेंट करना पड़ सकता है टू हैंडल इट विद केयर। आप शॉप से उसको लोडिंग व्हीकल में रखवाएंगे, लोडिंग व्हीकल से फिर घर पर उतरवाएंगे, तो आपको ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस, और इन एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम में। तो जब आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं तो वो तो प्राइस आपको देना ही है, साथ में ये ओवरहेड एक्सपेंसेस जो दे रहे हैं आप, ये भी तो रेफ्रिजरेटर के साथ ही अटैच हो गए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका ये सब कंबाइन होके बन जाएगा। Additional expenses made after buying an article are included in the cost price and are known as overhead expenses. And the cost price of the item then is the buying price plus the overhead expenses. इन दोनों का सम होगा और तब हमें ये cost price मिलेगा। इसके हम examples करेंगे और तब ये और अच्छे से clear होगा। Next we have some taxes. Sales tax, value added tax and goods and services tax. What is sales tax? It is charged by the government on the sale of an item. It is collected by the shopkeeper from the customer and given to the government. So every time whenever you buy a product, you are giving some part of it to the shopkeeper and some part of it to the government. And this part which is being paid to the government is called the sales tax. Also we have one more type of tax, value added tax. In short we call it as VAT. It is another type of tax. Then we have GST, goods and services tax. It is levied on supply of goods or services or both. By goods we mean the items that you purchase, and here we are also talking about the services. These services are also taxable. आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं देन यू टेक द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, अ नर्स. वेन एवर यू गो आउट टू डाइन इन अ रेस्टोरेंट देन यू टेक द सर्विसेज ऑफ अ वेटर. सो दीज सर्विसेज आर ऑल्सो टैक्सेबल and are included in the billing amount.
Then these taxes are always calculated on the selling price of an item and also added to the value of the bill. तो शॉपकीपर जितने में आपको सेल आउट कर रहा है आइटम, वो हो गया सेलिंग प्राइस शॉपकीपर के लिए, और उसी पर हम कैलकुलेट करते हैं इन टैक्स को भी, इनकी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और तब आपको उसका फाइनल बिल मिलता है. गेटिंग इट? नाउ आफ्टर ऑल दीज डिस्कशन we will be doing some examples, some questions from your book and then get a clear understanding. This is example number 2. The price of a scooter was rupees 34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is the price now? देखिए अब यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है और अब आप मुझे लगता है इजीली कर पाएंगे. देखते हैं कैसे करना है. We begin the solution. Price of scooter last year, it has been given equal to rupees 34,000. Last year स्कूटर का जो प्राइस दिया है वो है रुपीज़ 34,000 और अब उसके प्राइस में इस साल 20% इंक्रीज हो रहा है और अब हमें उसका नया प्राइस बताना है कि नाउ द प्राइस इज व्हाट. क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? नाउ द प्राइस ऑफ स्कूटर लास्ट ईयर वाज रुपीज़ 34,000. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ स्कूटर, इट इज 20% of what? Yes, of the original value of the scooter. So it will be 20% of rupees 34,000. हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो परसेंटेज है ये ऑफ समथिंग होगी एंड इट विल बी ऑलवेज ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. तो 20% ऑफ रुपीज़ 34,000. एक बार आप यहाँ इस स्टेप पर पहुँच गए, इसके बाद सब कुछ बहुत ईजी है. 20% हो गया 20 अपॉन 100. ऑफ के लिए लगाएंगे इनटू एंड 34,000. कैंसिल दीज टू जीरोस. नाउ व्हाट? 2 into 34. 2 4s are 8, 2 3s are 6 and how many zeros? 1 2. So it's rupees 6,800. ये हो गया इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर. तो अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा? पहले जो प्राइस था वो था रुपीज़ 34,000 और अब इतना इंक्रीज हो गया तो ये एडअप हो जाएगा प्लस रुपीज़ 6,800 और अब आप इनको ऐड कर लीजिए. इट विल बी 800, देन 4 and 6 it's 0, 10 and here we have 4. So it's rupees 40,800. This is the new price of the scooter after an increase of 20%. Okay, we have one more part of this same example. In order to increase its sale, the price of scooter was decreased by 5%. Then find the price of scooter. ताकि सेल बढ़ जाए स्कूटर की तो उसका प्राइस कम किया गया, उसको सस्ता बनाया गया और कितना कम किया गया? बाय 5%. तो अब स्कूटर का क्या प्राइस है ये पूछ रहे हैं. तो प्राइस ऑफ स्कूटर इट वॉज रुपीज़ 34,000. Now decrease in the price of scooter कितना है? 5%. Ask yourself 5% of what? 5% of the original value of the scooter and it is rupees 34,000. तो हमेशा हम परसेंटेज किसी ना किसी की निकालेंगे. 5% इसका. ओके, 5 upon 100 ऑफ के लिए लगाएंगे इनटू और ये हो गया 34,000. 0 से 0 कैंसिल हो गए. नाउ वी हैव 1 0 एट द एंड. दिस 0. 5 4s are 20, 2 carried, 5 3s are 15, 16 17. रुपीज़ 1,700. इतना डिक्रीज कर दिया है वैल्यू ऑफ स्कूटर. और तब न्यू प्राइस कितना हो जाएगा स्कूटर का? पहले प्राइस था रुपीज़ 34,000. अब इतना कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो माइनस करेंगे इस बार. ऐड नहीं करना है, माइनस करना है. माइनस रुपीज़ 1,700. दिस विल बी इक्वल टू रुपीज़ हाउ मच? 0 0 ऐसे ही आ गए. 10 minus 7 it's 3. कैंसिल इट. 3 minus 1 it's 2 and 3. 32,300. तो इतना कम करने के बाद ये हो गया नया प्राइस स्कूटर का और तब क्योंकि ये सस्ता हो गया है तो मे बी द सेल में इंक्रीज. ओके, वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 3. An item marked at rupees 840 is sold
for rupees 714. What is the discount and discount percentage? देखिए आप, marked price of item is rupees 840. आइटम के ऊपर जो टैग लगा हुआ है उस पर उसका प्राइस लिखा है 840 रुपीज़, और शॉपकीपर कितने में दे रहा है आपको? ही इज़ गिविंग इट इन रुपीज़ 714. इतने में आपको बेच रहा है. ही इज़ सेलिंग इट. इट इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 714. तो ऑब्वियसली सस्ता करके बेच रहे हैं, तो यहाँ एक डिस्काउंट छिपा हुआ है. लेट अस राइट इट. मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम, इट्स रुपीज़ 840 एंड सेल प्राइस इट्स रुपीज़ 714. तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा? इट विल बी मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस. अगेन this will be equal to marked price is rupees 840 minus rupees 714. कितना हो गया? माइनस कीजिए. 10 minus 4 it's 6. Cancel it. 3 minus 1 it's 2 and rupees 126. ये हो गया डिस्काउंट. इतने की छूट मिल रही है हमको. देन डिस्काउंट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला आपने याद किया होगा. इट्स गिवन बाय डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100. डिस्काउंट आपका आया है 126 रुपीज़. मार्क्ड प्राइस इट इज़ 840 रुपीज़ एंड देन इंटू 100. कैंसिल दिस ज़ीरो. देन डिवाइड बाय 2. 2 4s are 2 2s are. Divide by 2. 2 6s are 2 3s are. 42 and 63 both are divisible by 7. 7 6s are 42, 7 9s are 63. 9 and 6 again divisible by 3. 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2s are 3 3s are. और यहाँ से 2 और 5 डिवाइड हो रहे हैं. 2 1s are 2, 2 5s are 10. After all these cancellations, we have 3 5s are 15%. So how much is the discount here? It's 15%. ठीक है, क्लियर है. Next we have example 4. The list price of a frock is rupees 220. List price मतलब marked price. फ्रॉक के ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो है रुपीज़ 220 का, उसी को हम लिस्ट प्राइस कह रहे हैं. A discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and its sale price? तो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस है फ्रॉक का रुपीज़ 220. मार्क्ड प्राइस ऑफ द फ्रॉक. ठीक है. और डिस्काउंट कितना ऑफर हो रहा है? 20%. 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्रॉक, विच इज हियर द मार्क्ड प्राइस. सो 20% ऑफ द मार्क्ड प्राइस. दिस इज नथिंग बट 20% ऑफ रुपीज 220. 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी 20 अपॉन 100. ऑफ के लिए लगाएंगे इनटू, और यहाँ आ गया 220. 0 से 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गए. 2 इंटू 22 इट इज़ रुपीज़ 44. ये हो गया हमारा डिस्काउंट. तो पहली चीज़ तो आ गई. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट? वो हमें मिल गया है. अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इट इज़ रुपीज़ 44. देन इट हैज़ बीन आस्क्ड व्हाट इज़ इट्स सेल प्राइस. तो सेल प्राइस कैसे मिलता है हमें? Sale price is nothing but marked price minus the discount. फ्रॉक थी, मार्क्ड प्राइस है उसका रुपीज़ 220 का, और डिस्काउंट है 44 रुपीज़ का. तो इतना हमें छूट मिल गई. माइनस कर देंगे. सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट इट एज 10 minus 4 it's 6. Cancel it. 1. 11 minus 4 it's 7. Cancel it, it will be 1. So rupees 176. तो जो फ्रॉक 220 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस था, वो अब 20% डिस्काउंट के बाद जो कि निकला रुपीज़ 44 का डिस्काउंट, हमें मिल रही है रुपीज़ 176 में. ओके. नेक्स्ट अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन. इट इज़ एग्जाम्पल 5. सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज़ 2500. then spent rupees 500 on its repairs and sold it for rupees 3300. Find his loss or gain percent. अब आप देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं और उसके साथ ही हैं कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस.
₹500 तो रिपेयरिंग में स्पेंड हो रहे हैं और फिर बाद में उनको सेल किया जा रहा है ₹3300 में। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। इट विल बी इक्वल टू बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखिए बाइंग प्राइस कितना है रेफ्रिजरेटर का, इट इज ₹2500। एड अप हो जाते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस जो बाइंग प्राइस है प्रोडक्ट का उसमें, और ये है ओवरहेड एक्सपेंस ₹500 जो उसकी रिपेयरिंग में स्पेंड किया है सोहन ने। ठीक है, एड अप द टू, इट इज ₹3000। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर फॉर सोहन। सोहन के लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो ये हो गया। नाउ ही इज सेलिंग इट एट ₹3300। सो वी राइट हियर सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर it is equal to ₹3300। अब आप देखकर बताइए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, देखिए फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। परसेंट भी निकालनी है हमें, प्रॉफिट या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, बोथ वेज। ठीक है, तो देखिए आप कॉस्ट प्राइस है ₹3000 और सेलिंग प्राइस है 3300। तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा रुपए में सेल कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। वी राइट हियर सिंस सेलिंग प्राइस is greater than cost price, there is a profit or gain, both mean the same। ठीक है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है, it is selling price minus the cost price। selling price is 3300 और total cost price हमारा पड़ा ₹3000 का। this is equal to ₹300। this is the profit in rupees। now we need to find the profit percent। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, profit percent this is equal to profit लेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा हम लेंगे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। तो यहाँ लेंगे कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। दिस विल गिव यू प्रॉफिट इज ₹300, कॉस्ट प्राइस इज ₹3000 इंटू 100। कैंसिल दीज टू जीरोस, ये एक जीरो और कैंसिल हो गया, एंड 30/3 इट इज इक्वल टू 10%। So we are having 10% gain. This is the solution to this question and I hope it's very easy and interesting for you. Next we have example 6. A shopkeeper purchased 200 bulbs for ₹10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at ₹12 each. Find the gain or loss percent. यहाँ बात हो रही है कि शॉपकीपर के पास है 200 बल्ब्स, उन्होंने 200 बल्ब्स परचेज किए एट ₹10 फॉर ईच बल्ब। तो एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस फॉर 1 बल्ब ये हो गया आपका ₹10। अब कितने बल्ब परचेज हो रहे हैं, 200 बल्ब्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी ₹10 into 200, this will be ₹2000। ठीक है, नेक्स्ट 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, 5 बल्ब फ्यूज हो गए, ये जो 200 बल्ब्स थे उसमें से 5 फ्यूज हो गए और उनको थ्रो कर दिया गया। अब कितने बल्ब बच गए, इट विल बी 200 minus 5 that is 195 बल्ब्स आर लेफ्ट। अब हर बल्ब को ₹12 के कॉस्ट पर सेल आउट कर रहे हैं और इस तरह से सेलिंग प्राइस फॉर 1 बल्ब ये हो गया ₹12। तो 195 बल्ब्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इट विल बी ₹12 into 195 and so on। we will be solving this question। this is just a rough sketch। now we will write the answer fairly। cost price of 1 bulb, it is ₹10।
Then cost price of 200 bulbs, it is rupees 10 into 200. This will be equal to rupees 2000. Then number of fused bulbs that were thrown away, it is 5. 5 bulbs fuse हो गए जो फेंक दिए गए, तो number of bulbs left, it will be 200 minus 5, that is 195 bulbs. Now selling price of one bulb, it is rupees 12. Then selling price of 195 bulbs, it will be rupees 12 into 195. Let us multiply 195 into 12. 12 5s are, it's 60, 6 carat, 12 9s are 108 plus 6, it's 114. तो 4 यहाँ ले लिया, 11 carat, 12 1s are 12 plus 11, it's 23. So it's 2340 rupees, 2340. अब चेक करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता होना चाहिए, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो देखिए आप, कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 2340. तो बताइए कि लॉस है या प्रॉफिट. You think it over till I make some space. Yes, here we will write, since selling price is greater than cost price, there is a profit, or you can write it as gain. And now the profit will be given by selling price minus the cost price. Selling price is 2340 minus the cost price is rupees 2000. दोनों को माइनस किया तो हमें मिल गया रुपीज़ 340. ये हो गया प्रॉफिट इन रुपीज़. नाउ वी वांट टू फाइंड इट्स परसेंटेज. तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का. प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एज प्रॉफिट अपॉन विच प्राइस, cost price or selling price? Yes, we always calculate the profit percentage over the cost price. Cost price को लेंगे यहाँ पर into 100. Now this profit is rupees 340. Cost price हमारा है 2000 rupees into 100. Cancel these two zeros, this 0 and this is equal to 34 by 2, which is 17. And so the profit percentage is equal to 17%. Okay. Next we have example 7. Meenu bought 2 fans for rupees 1200 each. 2 fans purchase किए मीनू ने और each fan का cost है rupees 1200. Single fan का cost है rupees 1200 और second fan का भी cost है rupees 1200. तो total हो गया rupees 2400. She sold one at a loss of 5% and the other at a profit of 10%. अब मीनू ने दोनों ही फैंस को सेल आउट कर दिया. एक को सेल करने से लॉस हो गया 5% का और सेकंड फैन को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है 10% का. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच. ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पर दोनों फैंस को एक एक करके लेते हैं. फर्स्ट वी राइट हियर cost price of each fan, it is rupees 1200. Now we consider the first fan. On selling the first fan, there is a loss of 5%. As you can see, loss of 5%. So loss is 5% of what? जब भी आप percentage लिख रहे हैं तो अपने आप से पूछिए of what? Of rupees 1200 जो कि cost price है fan का. This is now 5 upon 100. ऑफ के लिए लगाएंगे इंटू और यहाँ आ गया 1200. ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए और ध्यान रखिएगा जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो तभी हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो तब हम इस तरह से ज़ीरोज़ या नंबर्स कैंसिल नहीं कर सकते हैं. नाउ 5 into 12 इट इज़ रुपीज़ 60. ये हो गया लॉस. तो अब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन, this will be how much? Cost price minus the loss. कितने का फैन था? 1200 रुपीज़ का.
और 60 रुपीज़ के लॉस पर सेल आउट कर रहे हैं, तो इतने रुपए कम में हम बेच रहे हैं. दिस विल बी हाउ मच? 1140 रुपीज़. This is the selling price of the first fan. Okay, remember this, we will use it further. Next we come to the second fan. On selling the second fan, this time the profit is 10%. Of what? Of the cost price. So 10% of rupees 1200. इसका 10% प्रॉफिट हो रहा है. सो दिस विल बी 10 अपॉन 100. ऑफ के लिए लगाएंगे इंटू 1200. कैंसिल दीज टू zeros. दिस इज इक्वल टू रुपीज 120. 12 into 10 it's 120. And now the selling price of second fan. This is equal to how much? Cost price plus profit. देखिए 1200 रुपीज़ में खरीदा था, उतने में तो बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट कमाने के लिए 120 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं ऑन सेलिंग. तो ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड फैन. एड दीज टू नंबर्स. दिस विल बी 20 हियर एंड 3 हियर. रुपीज़ 1320. ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड फैन. तो अब आप क्वेश्चन समझे यहाँ पर क्या है. पहला पंखा लिया 1200 रुपीज़ का और फिर उसको सेल आउट करने में लॉस हो गया और 1140 रुपीज़ में उसको बेचा. लॉस हो रहा है, 1200 में ख़रीदा और कम में बेच रहे हैं. सेकेंड फ़ैन भी हमने 1200 रुपीज़ में ही लिया था, लेकिन इस बार हम ज़्यादा रुपीज़ में सेल आउट कर रहे हैं और इसलिए हो रहा है प्रॉफिट. अब दोनों फैंस का एक साथ कंसिडर करें तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये देखना है. तो यहाँ पर हम दोनों के ही कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करते हैं और दोनों का ही टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं और फिर हम बता पाएंगे. सो वी राइट हियर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ फैंस. इट इज रुपीज़ 1200 फॉर द फर्स्ट फैन प्लस रुपीज़ 1200 फॉर द सेकेंड फैन. दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 2400. ठीक है. नेक्स्ट वी फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैंस. टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैंस. ये कितना हो गया देखिए आप. फर्स्ट फैन का सेलिंग प्राइस है 1140 और सेकेंड फैन का है 1320. एड अप you will get it rupees 00 will be 0, 4 plus 2 it's 6, 1 plus 3 it's 4, 1 and 1 it's 2. Yes, अब आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस बोथ फैंस का हो रहा है 2400 और टोटल सेलिंग प्राइस हो रहा है 2460 और ये इस अमाउंट से ज़्यादा है, तो यहाँ हो रहा है प्रॉफिट. गेटिंग इट? वी टेक द नेक्स्ट पेज. Since selling price is greater than cost price, there is profit and this is equal to rupees 2000. How much it is? 460 minus rupees 2400. ये है टोटल सेलिंग प्राइस और ये है टोटल कॉस्ट प्राइस. सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल रहा है इक्वल टू ₹60. ये हो गया ₹60 का प्रॉफिट. और इसी को अगर हम परसेंटेज में निकालें, इन द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन आस्क्ड द परसेंटेज. यू सी हियर ओनली टोटल प्रॉफिट और लॉस हैज़ बीन आस्क्ड. परसेंटेज नहीं पूछी है, तो हम यहीं पे अपना आंसर फाइनल लिखते हैं. दिस इज़ द फाइनल आंसर. पर अगर हमसे परसेंट प्रॉफिट भी पूछा होता तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे. 60 अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज़ 2400 इंटू 100 करके, इसको सॉल्व करके हम इजीली परसेंटेज प्रॉफिट भी निकाल सकते थे. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 8. द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450. The sales tax charged was 5%. Find the bill amount. So here sales tax has come into picture. रोलर स्केट्स
का कॉस्ट है ₹450 और इसी पर 5% सेल्स टैक्स भी चार्ज हो रहा है। तो अब दोनों को मिलाकर बिल का अमाउंट कितना होगा ये हमसे पूछ रहे हैं। सो वी राइट हियर अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, इसको फाइंड करेंगे। दिस इज गिवन एज 5% और ये 5% होगा किसका, ऑफ दिस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पेयर ऑफ रोलर स्क्वीड्स, जो इसका कॉस्ट है उसी का 5% होगा टैक्स का अमाउंट। सो 5% ऑफ ₹450, दिस इज इक्वल टू 5/100, ऑफ के लिए लगाएंगे इंटू 450, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दिस इज 45/2, डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, then 2 2 ज़ा 4, 1 will be left, 1 0, so 0.5 will come, so 22.5 rupees. This is the amount of sales tax. And now what will be the bill amount? बिल में हमें ये 450 तो रुपीज़ देने ही होंगे, साथ ही साथ ये टैक्स का अमाउंट भी पे करना होगा, तो दोनों का सम आएगा यहाँ पर। वी राइट हियर बिल अमाउंट, it is equal to cost price of item plus the sales tax. This is equal to cost price is ₹450 plus here we have ₹22.50 we can write. This is equal to rupees, ये पॉइंट से पहले वाला जो फिगर है ये इसमें ऐड हो जाता है। कैसे ऐड करते हैं, देखिए इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें भी आप पॉइंट कहाँ कंसिडर करते हैं, एट द एंड, वंस प्लेस डिजिट के बाद में। तो ये हो जाएगा 450.00 और यहाँ से ले लिया 22.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर फिर हम ऐड करते हैं, तो ये हो गया 5, दिस इज 2, 5 + 2 7 और ये हो गया 472.50। सो दिस इज 472.50। अब यहाँ पर 0.5 है, यहाँ 0.50 ले लिया, इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर एक नंबर में डेसिमल है और दूसरे में डेसिमल नहीं है तो हम इसमें भी डेसिमल लगाएंगे एट द एंड, वंस प्लेस डिजिट के बाद इस तरह से, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम ऐड करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये 22 जो है पॉइंट से पहले वाला फिगर इसमें ऐड अप हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और कि यहाँ पर 0 नहीं था और हमने यहाँ 0 लगा दिया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इसका मतलब है 50 पैसे, 22 रुपीज़ 50 पैसे, इसलिए हमने 0 लगाया है। पॉइंट के बाद हम इस तरह से 0 लगा सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 9। Wahida bought an air cooler for ₹3,300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. अब ये जो प्राइस दिया है एयर कूलर का, इसमें 10% टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमें पता करना है कि टैक्स इंक्लूड होने से पहले जो ओरिजिनल कॉस्ट था एयर कूलर का वो कितना रहा है। तो हम मानकर चलते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड इट बी ₹X, देन द वैल्यू ऑफ वैट और अमाउंट ऑफ वैट, दिस इज द टैक्स, अमाउंट ऑफ वैट, ये कितना हो जाएगा टैक्स, इट इज 10% ऑफ वॉट, अपने आप से पूछिए ऑफ वॉट, ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर। एयर कूलर का ओरिजिनल प्राइस कितना लिया है हमने, ₹X, तो ये जो अमाउंट ऑफ वैट होगा ये होगा 10% ऑफ दिस वैल्यू X। तो यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ X, दिस इज 10/100 इंटू X, ये 0 और 0 कैंसिल हो गए, दिस विल बी X 1 ज़ा X अपॉन 10। सो दिस इज इन रुपीज़ द वैल्यू और द अमाउंट ऑफ दिस टैक्स। अब हम जब बिल पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, X रुपीज़ तो देने ही होंगे जो एयर कूलर का ओरिजिनल प्राइस है, साथ ही साथ हमें ये टैक्स भी पे करना होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल एंड दिस बिल हैज़ बीन गिवन फॉर ₹3,300। ओके, so we can write
according to the question, price of air cooler, or we can write total price of air cooler, this is equal to how much? Rupees X plus the amount of VAT, it is rupees X upon 10, और ये टोटल हमें दिया हुआ है इक्वल टू रुपीज़ 3300। एयर कूलर का ओरिजिनल जो प्राइस है वो भी पे करना होगा और ये टैक्स अमाउंट भी देना होगा, और तब टोटल हमें पड़ रहा है रुपीज़ 3300। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 10 जो है एलसीएम ले लेते हैं, ये 10 इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x प्लस x, और डिनोमिनेटर में पूरा ये आ जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू 3300। 10x प्लस x, इट इज 11x upon 10 equal to 3300. Next we move towards the next page. We are having 11x upon 10 equal to 3300. यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3300 into 10 upon 11. ये 10 जो यहाँ डिवीजन में था RHS में जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और 11 जो मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ आके डिवीजन में हो गया। दिस इज इक्वल टू 11 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा 33 एंड 2 zeros. दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 3000. दिस इज x, और x क्या है? द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 3000. सो वी राइट हियर द प्राइस ऑफ एयर कूलर before VAT was added, it is equal to rupees 3000. Okay, I hope it is clear. Next we have example number 10. Salim bought an article for rupees 784 which included GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? So again this is a similar question to the previous one. यहाँ पर हमें ये जो प्राइस दिया है ये आफ्टर एडिंग दिस GST अमाउंट ये दिया हुआ है, और हमें इस आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो बताना है। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज़ एक्स, इसको हम x मान के चलते हैं, तो अमाउंट ऑफ GST कितना हो गया? इट इज़ 12%, एंड 12% ऑफ वॉट? Of the original price of the item. It will be 12% of rupees X. This is equal to 12 upon 100 into X. Now cancel by 2. 2 6 are 12 and this is 50. Again by dividing by 2. 2 3s are, and here we have 25. So this is equal to 3x upon 25. ये हो गया अमाउंट ऑफ GST इन रुपीज़। ठीक है, अब जो हम आर्टिकल परचेज कर रहे हैं उसका टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जो ओरिजिनल प्राइस है वो प्लस ये जो टैक्स है, ये दोनों का सम ये ही तो हमें देगा इक्वल टू रुपीज़ 784, जो कि प्राइस है आफ्टर एडिंग GST. सो वी कैन राइट हियर according to the question, price after GST is included, it will be equal to x plus 3x by 25 and this is equal to rupees 784. ठीक है, ये प्राइस है जो हमने ओरिजिनल मान लिया। पहले से बिना GST ऐड किए हुए जो ओरिजिनल प्राइस है आर्टिकल का वो है x रुपीज़, फिर ये हमने उसका 12% यहाँ पर GST की वैल्यू निकाल ली, और जब बिल पे करेंगे तो ये प्राइस भी देना होगा, साथ ही साथ टैक्स का भी पेमेंट करना होगा, तो दोनों को मिलाकर पेमेंट करेंगे, और वो हमें दिया हुआ है रुपीज़ 784, इसीलिए इन दोनों को प्लस करके हम 784 के इक्वल रख रहे हैं। नाउ सिंप्लीफाई, यहाँ पर 25 LCM ले लेंगे और ये 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x से और बन जाएगा 25x, और यहाँ है 3x. दिस इज इक्वल टू 784. दिस इज 28x upon 25 equal to 784. Now x will be equal to 784
into 25 अपॉन 28। देखिए आप 28 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवीजन में हो गया, और 25 डिवीजन में था, RHS में जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब आप इजीली दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए आप 28 और 784 हम डिवाइड करते हैं एक बार 7 से। 7 4s are 28, here 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14. Again we can divide by 4, तो ये हो जाएगा 4 2s are 8, then 32, 8 times 32, तो हमने 4 से 112 को डिवाइड किया तो 28 आ गया, and into 25. Now multiply 28 and 25. You will get it 5 8s are 40, then 10 and 4 14. Here we have 56. This is nothing but 700. So this is equal to rupees 700. तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल वो क्या हो गया? बिफोर GST वॉज एडेड इट इज रुपीज 700। और यही हमसे पूछा था कि what is the price of the article before GST was added, and it is equal to 700 rupees. We can give the answer in statement also. The price of the article before GST, goods and service tax, was added, it is equal to rupees 700. Okay, I hope it is clear. So these were some examples from your book based on increase, decrease, discount, then profit, loss, and then finally these taxes. I hope everything is clear. In our next video, we will be doing exercise 8.2 based on all this discussion. Till then, you can practice those questions once on your own. Okay, goodbye.